ગુડ મોર્નિંગ. ધ સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી રવિવારની સવારે આપ દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ફરી એક વખત રવિવારની સિરીઝ આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે આપણા નવા પ્રમુખ અશોકભાઈ જીરાવાળા સાહેબના અધ્યક્ષતામાં. લાસ્ટ યરની વાત કરીએ તો કહી શકાય કે એક કોઈ પણ પ્રોફેશનલ મેડિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન પણ જેટલી CMEs અથવા તો કાર્યક્રમોનું આયોજન નથી કરતું તેનાથી પણ વધારે એટલે કે 45થી પણ વધારે કાર્યક્રમો આપણે પબ્લિક હેલ્થ કમિટી દ્વારા થયા હતા. તો ફરી એક વખત અમે અમારા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ એવા નિખિલ મદ્રાસી સાહેબ આપનો અમે આભાર માનીએ છીએ અને અશોકભાઈ જીરાવાલા સાહેબ આજે આ પ્રથમ આપણી CME જવા થઈ રહી છે ને નાણાવટી મેક્સ હોસ્પિટલ દ્વારા અવેરનેસ સેશન ઓન કેન્સર કેર બિયોન્ડ ટ્રીટમેન્ટ, અવેરનેસ, અર્લી ડિટેક્શન અને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ એની પર છે. તો આજનું હું વેલકમ એડ્રેસ કરવા માટે અશોકભાઈ જીરાવાલા સાહેબ આપને વિનંતી છે કે આપ પ્રસંગોત આપશો. તંદુરસ્તી જેવી કોઈ દોલત નથી અને જાગૃતિ વગર કોઈ જીત નથી. જો સમય રહેતા સંભાળી લઈએ શરીરને તો દુનિયાની કોઈ બીમારી મોટી નથી. આ હકીકત છે. આજે આ મંચ પર આપણી વચ્ચે મુંબઈ સ્થિત નાણાવટી હોસ્પિટલના નામાંકિત ડોક્ટર તબીબ ડોક્ટર દેવેન્દ્ર સાવકર, આપણી વચ્ચે ડોક્ટર ભરત સક્સેના સર, પબ્લિક હેલ્થ કમિટીના સભ્યો તેમજ વહાલા ભાઈઓ અને મિત્રો, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા આપ સૌનું આ તકે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, મારી સાથે મારા IPP એવા ભાઈ શ્રી નિખિલ મદ્રાસીજી, અમારા સેક્રેટરી શ્રી પરેશભાઈ લાઠિયાજી, ટ્રેઝરર એવા અતુલભાઈ પટેલ, અમારા ગ્રુપ ચેરમેન એવા પારુલબેન વડગામા, डॉक्टर जगदीश वघासियाजी, भाई राजन और आप सब मित्रों, ये आज का ये सेशन है जो अपनी लाइफ और स्टाइल के लिए, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए जो हम बीमारी से बच सके, क्योंकि कर भला तो हो भला, ये कहने का ये सूत्र है लेकिन ये सार्थक है. अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने परिवार का ध्यान कौन रखेगा. तो आज अपने 20 जो डॉक्टर पधारे वो नामी डॉक्टर है, नानावटी से आए हैं और कैंसर के बारे में आपको बताएंगे. क्योंकि ये शहर की बात करें तो यहाँ ज्यादातर प्रेजेंट पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा है तो सूरत में. अगर उससे बचना है तो हमें अवेयरनेस चाहिए और आप सभी लोग आए हैं. अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को हम बताएंगे. यहाँ से जो भी लेके जाएंगे उसका बेनिफिट हमें तो मिलना चाहिए लेकिन वो अवेयरनेस अपने परिवार को भी मिलना चाहिए कि कैंसर से कैसे बचाया जा सकता है. क्योंकि आज हम कोई भी बीमारी को नजरअंदाज करते हैं तो वो बीमारी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और फिर उसका इलाज 3rd स्टेज में हो जाता है, फिर बचना नामुमकिन. लेकिन जो 1st स्टेज से अगर आपको पता चलता है कैंसर है, अगर हम सही कदम उठाते हैं, उसका बायोप्सी करवाते हैं, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, तो मैं मानता हूँ उससे बचा जा सकता है. ऐसा कोई नहीं है इलाज कि हम नहीं बच पाते, लेकिन इसमें हम बच सकते हैं. तो आप सभी का फिर से इस शुभ शुरुआत से आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ. और एक આપણી ગુજરાતીની પંક્તિ છે, આશા છોડવી એ જિંદગીની હાર છે, હિંમત રાખવી એ સાચો હથિયાર છે. કેન્સર સામેનો જંગ આપણે જીતવો પડશે જ, કારણ કે આપણી પાછળ આપણો પરિવાર છે. આ સાથે હું આ મંચને ખુલ્લું મૂકું છું અને આપ સૌ જેટલું બને એટલું ગ્રહણ કરી અહીંયાથી કંઈક મેસેજ આપણા પરિવાર સુધી, આપણા શહેર સુધી અને આપણા બાંધવો સુધી પહોંચાડશો એવી હું આશા રાખું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. જી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અશોકભાઈ. આ સાથે જ વધુ એક બે જાહેરાત કરવાની અમને ઈચ્છા થાય છે અથવા તો કહી શકીએ કે આનંદની વાત છે કે અશોકભાઈ જીરાવાલા જે આપણા પ્રમુખ બન્યા છે તેમના ટેન્યરમાં હવે જે પબ્લિક હેલ્થ કમિટી છે તેમના
હોદ્દાઓમાં પણ એ ફેરફાર આવ્યા છે. જેમ કે હવે જ્યારે ચેરમેન જે ડૉક્ટર પારુલ વડગાવા મેડમ હતા તે હવે ગ્રુપ ચેરમેનમાં એમની બદલી થઈ છે. એમના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મેડમ. આ સાથે જ હવે નવા ચેરમેન આપણા પબ્લિક હેલ્થ કમિટીના એ નવા ચેરમેન તરીકે આપણે ડૉક્ટર જગદીશ વઘાસિયા સાહેબ જે પબ્લિક હેલ્થ કમિટીના નવા ચેરમેન તરીકે કાર્યરત રહેશે. તો આ સાથે જ હવે હું આજના જે બંને આપણા મહેમાનો છે તેમને કહીશ કે મંચ પર આગળ આવશો. और डॉक्टर देवेंद्र सर और डॉक्टर भरत सर आपको विनती है कि आप मंच पे आगे और बीजा अन्य महानुभावों ने विनती है कि एमનું स्वागत करसो, अभिवादन करसो. देवेंद्र सर, भरत सर, हम ऐसा है कि हम बुके देते नहीं हैं, हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करना रहता है. हमारे जो प्रमुख है वो टेक्सटाइल के कैसे ब्रांड एम्बेसडर जैसे है, तो हम आपको साड़ी का बुके देंगे जिसका फायदा आपकी अर्धांगिनी को जरूर होगा. हेलो सर, ये प्रूफ रहेगा कि आप सूरत शहर के अंदर आए थे और सूरत का प्यार आप ले जाएंगे जी. तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए हूँ डॉक्टर जगदीश वघासिया सर, जो हमारे नए चेयरमैन पब्लिक हेल्थ कमेटी के बने हैं. सर, आपसे विनती है कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा दे. डॉक्टर जगदीश वघासिया सर. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌ પ્રથમ તો આ નવા વર્ષની શરૂઆત નવા પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ જીરાવાલા અને એની સમગ્ર ટીમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ વર્ષે પબ્લિક હેલ્થ કમિટીના ચેરમેન તરીકેની જવાબદારી મને સોંપી છે એ હું સુપેરે પાર પાડવા માટે પૂરતા પ્રયત્ન કરીશ. એ બદલ અશોકભાઈ જીરાવાલા, પરેશભાઈ લાઠિયા, અતુલભાઈ અને આઈપીપી નિખિલભાઈ સમગ્ર ટીમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આજનો ટોપિક આપણે ઘણા બધા ગયા વર્ષે બી કેન્સર વિશેના ટોપિક લીધેલા અને અવેરનેસ માટે ખાસ એટલા માટે કહેવું પડે કે 2025-26ના આંકડા જોઈએ તો દર વર્ષે અંદાજે 3 કરોડ જેટલા લોકો કોઈને કોઈ કેન્સરનો ભોગ બને છે. આપ ગૂગલ પણ કરી શકશો. અને 2025 આવતા દર વર્ષે અંદાજે 5 કરોડ લોકોને આ કેન્સર થવાની પૂરી સંભાવના છે. એના કારણો વિશે આપણે ઘણા બધા જાણીએ જ છીએ, ઘણા બધા કારણ હોય છે. તો અત્યારથી આપણે કેમ એને અવેરનેસ ન કરીએ? સોસાયટીમાં આપણું પણ એક યોગદાન હોવું જોઈએ, કોઈને કોઈક જવાબદારી આપણી પણ છે. સમાજમાં આપણે નાના મોટા કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ ત્યારે આ એક અવેરનેસ લાવવી ખૂબ જરૂરી છે. બીજા બધા રોગને આપણે અટકાવી શકશું, પણ કેન્સર જો પહેલેથી જ ખ્યાલ આવી જાય તો એની સારવાર થઈ શકે, પરંતુ એ ન થાય એ માટેના આપણે પ્રયત્નો કરવાના છે. એના માટેનો આજનો આ સેમિનાર છે. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર દેવેન્દ્રભાઈ ચોકર સર, જેઓ કાનના હેડ એન્ડ નેક એટલે કે આપણું જે માથું અને ગળાના રોગ કેન્સર થતા હોય એના નિષ્ણાત છે. નાણાવટીમાંથી અત્યારે ઉપસ્થિત છે. એવા જ બીજા ડૉક્ટર છે ભરતભાઈ સક્સેના. આપણને એમ થાય પ્લાસ્ટિક સર્જનનો અહીંયા શું રોલ હોય એમ, પણ કેન્સર થયા પછી ઘણા બધા કેસમાં પ્લાસ્ટિક સર્જનનો ખૂબ મોટો રોલ હોય છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મોટાભાગના મોઢાના કેન્સરમાં પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. એવી જ રીતે ઘણા બધા ચામડીના કેન્સર થતા હોય એમાં પણ જરૂર પડતી હોય છે. તો પ્લાસ્ટિક સર્જનનો શું રોલ છે એના વિશે પણ આપણને ડૉક્ટર ભરતભાઈ સક્સેના આપણને માહિતગાર કરવાના છે. આપ સૌ નવા વર્ષની શરૂઆતના પહેલા સેમિનારમાં ઉપસ્થિત છો. આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આવનારા સેશનમાં પણ આપ સૌ અન્ય મિત્રોને પણ લાવશો એવી આપની પાસે અપેક્ષા છે. કેમ કે આ એક હેલ્થ અવેરનેસ માટેના કાર્યક્રમ હોય તો સોસાયટીમાં પણ એમની અવેરનેસ આવવી જોઈએ. તો આપ જ્યારે અહીંયા આવ્યા છો ત્યારે નેક્સ્ટ સેમિનાર જ્યારે પણ એરેન્જ થાય, આપણે મહિનામાં 2 સેમિનારનું આયોજન કરવાનું પ્રમુખશ્રીનું સૂચન છે અને એનો આગ્રહ છે કે ઓછામાં ઓછા 2 સેમિનાર મહિનામાં થવા જોઈએ. જે આપણે ગયા વખતે 4 કરતા હતા, પરંતુ થોડું ઓવરલોડ થઈ જતું હતું, એટલે હવે આ વખતે થોડા 2 સેમિનાર કરીશું આપણે. બીજો ને ચોથો એવું પ્રાઇમરીલી
આપણે ડિસાઇડ કર્યું છે. તો એમાં આપ સૌનો સાથ અને સહકાર મળી રહેશે એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. જી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. આ સાથે જ મંચ પર ઉપસ્થિત દરેક મહેમાનોને વિનંતી છે કે આપ નીચે આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. આપણે પ્રથમ સ્પીકર ડૉક્ટર દેવેન્દ્ર સર, હેડ એન્ડ નેક ઓન્કો સર્જન, જેમનો ટોપિક છે હેડ એન્ડ નેક કેન્સર એન્ડ ઓવરવ્યૂ, તે આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરીશું. આપણા બે સ્પીકર છે. બે સ્પીકરના એન્ડમાં આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર રાખીશું. ગુડ મોર્નિંગ. તો મને ગુજરાતી એટલા સારે નથી આવડતું, એટલે પ્રેઝન્ટેશન હિન્દી ઓર ઇંગ્લિશ કમ્બાઇન્ડ કરું છું. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ Gujarati because all my friends in Mumbai are Gujarati, so I understand everything of Gujarati, but I can't speak it so well. So मैं आज हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बात कर रहा हूँ. So पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है, इसको कैसे रोका जाएगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है और ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स. पहले हमारे यहाँ भारतवर्ष में 70% लोग मुंह का कैंसर एडवांस स्टेज में आते हैं. जब हम लोग मुंह रोज ब्रश करते हैं, रोज देख सकते हैं मुंह के अंदर, फिर भी 70% लोग लेट स्टेज में आते हैं, स्टेज 3-4, जहाँ ट्रीटमेंट कम इफेक्टिव रहती है. द रीज़न फॉर दैट इज डर बैठा रहता है कि ओरल कैंसर को कैसे जाए डॉक्टर के पास, मुंह बिगड़ जाएगा. तो डर की वजह से जब जो छोटा होता है तब आते नहीं है, और वो जब बड़ा हो जाता है तभी आते हैं. तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे ट्रीटमेंट इज़ नॉट हार्मफुल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और डॉक्टर भरत आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म और फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें मेंटेन की जाती है. तो पहले ग्रीटिंग्स फ्रॉम नानावटी. नानावटी हॉस्पिटल आप बहुत लोगों को मालूम होगा, तो ट्रस्ट हॉस्पिटल था, वो आगे का छोटा ट्रस्ट हॉस्पिटल अभी पीछे मैक्स ने लिया है, तो इट्स नानावटी मैक्स हॉस्पिटल. इट्स बिकम अ 500 बेडेड फैसिलिटी. इंडोर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी सुविधा है. स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू है अभी हमारे पास, और थिएटर्स आर वर्ल्ड क्लास, वेल इक्विप्ड विथ रोबोटिक सर्जरी. तो हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरी, लेज़र सर्जरी, ये सब इक्विपमेंट मौजूद है. तो हमारे यहाँ अप्रोच, जैसे मैं टाटा हॉस्पिटल में था 20 साल, आई वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो वही अप्रोच हमने प्राइवेट में लाने की कोशिश की है. तो ये एक कंबाइंड अप्रोच रहती है कि अकेला मैं हेड नेक कैंसर नहीं ट्रीट करता, तो मेरे साथ एक पूरी टीम है. तो जैसे मैं ऑपरेशन करता हूँ, डॉक्टर भरत रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट रहते हैं जो उनको खाना वापस खिलाने के लिए और बात करने को सिखाते हैं. तो ये सब चीज़ें अकेले पॉसिबल नहीं है, एक टीम अप्रोच की जरूरत है जो एक बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल है. और ये हमारी पूरी स्टाफ है. तो दीज आर ऑल द पीपल दैट वी रिक्वायर. तो मैं अकेला नहीं ट्रीट कर सकता, काफ़ी लोग हैं इसके पीछे जो एक पेशेंट को ठीक करने में जुट जाते हैं. ये हमारी टीम है नानावटी हॉस्पिटल की. आई एम द लीड सर्जन. आई हैव 2 अदर सर्जन, डॉक्टर संयुक्ता, डॉक्टर ऐश्वर्या. सो वी आर अ टीम. डॉक्टर भरत सक्सेना इज अ प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, ENT सर्जन है, फिजिशियंस है. वी नीड ऑल ऑफ देम टू ट्रीट पेशेंट्स. तो सर्जरी में क्या हुआ है, सर्जरी सालों साल सर्जरी फॉर ऑन्कोलॉजी वाज द मेन स्टे. अभी क्या हुआ, सिंस 80s 90s मेडिकल ऑन्कोलॉजी में बहुत रेवोल्यूशन आया है. बेटर ड्रग्स, सब लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से कि बाल झड़ जाएंगे, साइड इफेक्ट्स होगा, बट नाउ विद बेटर ड्रग्स, टारगेटेड थेरेपी. कैसा है कि अभी कीमोथेरेपी हैज बिकम टारगेटेड थेरेपी. टारगेटेड थेरेपी मीन्स वो जो ड्रग है वो खाली कैंसर के सेल्स को जाके मारेंगे और अपने बॉडी के नॉर्मल सेल्स को बचाएंगे. पहले क्या होता था, जो दवाई दी जाती थी उनको गुड सेल्स और बैड सेल्स में पता नहीं चलता था. दे यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ऑल द सेल्स, इसलिए वाइट ब्लड सेल काउंट नीचे गिरता था, इन्फेक्शन के चांसेस होते थे और वीकनेस और साइड इफेक्ट्स होते थे. अभी जो टारगेटेड थेरेपी आई है उसकी वजह से दे विल ओनली किल कैंसर सेल्स वाइल प्रिजर्विंग द नॉर्मल सेल्स. और अभी और एक उसमें एडवांस आया है वो इम्यूनोथेरेपी, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, या तो आप पूछ सकते हैं. रेडिएशन के टेक्निक्स भी बेटर हो गए, फोकस्ड रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, और पहले ही जैसे पूरा फेस जलाया नहीं जाता, इट्स ओनली फोकस्ड ऑन द एरिया ऑफ द ट्यूमर. इसके बावजूद हम सर्वाइवल इंप्रूव कर चुके हैं, लेकिन द गेन्स आर वेरी स्मॉल. हर टाइम 4-5% गेन होता है, हर कोई नया ड्रग आता है, कोई नया ट्रीटमेंट आता है. तो पर हमारा फोकस अभी सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिकंस्ट्रक्शन. मतलब पेशेंट को ना खाली कैंसर से मुक्त करना हमारा एम नहीं है, कैंसर से मुक्त करना ही है, लेकिन वो सोसाइटी में वापस जा सके, सोसाइटी में अपना काम कर सके. दैट इज आवर फोकस नाउ. सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले जमाने में इतना उस पर फोकस नहीं दिया जाता था. तो एज यू ऑल नो, अभी मैं हेड नेक कैंसर के बारे में थोड़ा बात करूंगा. हेड नेक कैंसर इज आर डिसीज. हमारे भारत में 20 to 30% ऑफ ऑल कैंसर्स
आर हेड नेक कैंसर। सो 30% कैंसर हेड नेक कैंसर है, और आपके गुजरात में तो ये ओरल कैंसर तो नंबर 1 है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। मेल्स में दिस कैंसर इज ऑलमोस्ट लीडिंग कैंसर, फीमेल में भी 5th और 6th कैंसर है ये। और आप जैसे हेड नेक कैंसर बोलते हैं, मतलब क्या? तो हेड नेक कैंसर मतलब ये सब जगह पे कैंसर होता है। नाक के पीछे वाला कैंसर, ये मुंह है आपका, टंग, आपका गाल, मुंह के टंग के पीछे वाला एरिया, आपका सांस का एरिया, खाने का एरिया, ये जो पूरा क्लेविकल, ये जो अपनी थोरैसिक मतलब चेस्ट के ऊपर जो पार्ट आता है वो पूरा हेड नेक कैंसर बोला जाता है। तो हेड नेक कैंसर एक कैंसर नहीं है, उसमें ओरल कैंसर आता है, नाक का कैंसर आता है, गले का कैंसर आता है, और इसके बावजूद थायराइड की ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती है, थूक की ग्रंथियां होती है, उसके सलाइवरी ग्लैंड कैंसर, थायराइड कैंसर, ये सब आता है हेड नेक कैंसर्स में। सो वी ट्रीट ऑल ऑफ दीज कैंसर्स एज हेड नेक कैंसर्स। और ये होता क्यों है? द लीडिंग कॉज इन आवर कंट्री इज टबैको। ओके, और ये गलत फहमी है लोगों में। काफी लोग आके मुझे बोलते हैं सर मैंने तो टबैको छोड़ दी, 5 साल हो गए। तो मैं पूछता हूँ कि आप सुपारी खाते क्या? तो बोला हाँ सुपारी तो आप खाते हैं। तो अरेका नट, जो बीटल नट होता है, दैट इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर कैंसर। तो अरेका नट खाने से भी कैंसर होता है, खाली तंबाकू खाने से होता है ऐसा ये गलतफहमी है। और इसका तो और एक वर्स्ट वर्जन जो है, जो इंडस्ट्री ने तैयार किया है, वो है दे मिक्स्ड अरेका नट या सुपारी विद टबैको और उसको गुटखा बना दिया, जो पैकेट में अवेलेबल है। और थैंकफुली महाराष्ट्र में बैंड है। और आपसे विनती करता हूँ, आप इन्फ्लुएंशियल लोग हो तो प्लीज टेल द गवर्नमेंट टू बैन गुटखा इन गुजरात ऑल्सो। इट इज़ वेरी हार्मफुल। वी आर सीइंग पेशेंट्स इन द 20s and 30s, क्योंकि 15 साल के बच्चे चालू करते हैं, स्कूल में चालू होता है या 9th-10th में, और बाय द टाइम दे रीच एज ऑफ 35-40 वो लोग को माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो मुंह खोलना बंद हो जाता है या कैंसर हो जाता है। तो ये 35-40 के लोग में हमारे देश में ये कैंसर दिखता है। और दूसरा है सिगरेट। आजकल थोड़ी कम हो गई है सिगरेट की लत, बट इसको हम खाली टबैको नहीं, इसको हम कैंसर स्टिक बोलते हैं। आप देखेंगे तो मैंने खाली यहाँ टबैको तो यहाँ आपको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ और कई तरह के विषाणु द्रव रहते हैं सिगरेट में जो आपको हार्म करते हैं, जो आपको कैंसर पैदा कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं लंग को, और कई बीमारियां इसकी वजह से हो सकती है। और ये है कि अपने देश में एडिक्शन स्टार्ट्स वेरी अर्ली। हमने एक सर्वे किया था टाटा हॉस्पिटल से कि 14-15 इज द एवरेज एज ऑफ स्टार्टिंग टबैको इन आवर कंट्री। 15 साल के बच्चे मैक्सिमम टबैको कंजम्पशन स्टार्ट्स। मैंने एक 10 साल की बच्ची ऑपरेट की है, दिस इज द यंगेस्ट गर्ल आई हैव ऑपरेटेड फॉर ओरल कैंसर। तो जब 10 साल की बच्ची हमारे पास आई थी तब मैं टाटा हॉस्पिटल में था, तो हमको तो लगा नहीं कि ये टबैको की वजह से होगा, ऐसे इट इज इम्पॉसिबल कि 10 साल की बच्ची को कैसे होगा टबैको। तो फिर भी उनके साथ उनकी दादी माँ आई थी, तो मैंने दादी माँ को पूछा कि आप कुछ तंबाकू का इस्तेमाल, तो बोलती हाँ हम तो रूटीनली इसका दांत वो मजबूत करने के लिए वो मिश्री का यूज करते हैं। मतलब उनको मालूम भी नहीं था कि टबैको वो मिश्री के पेस्ट में होता है और उसकी वजह से ये हो सकता है। तो 10 साल की बच्ची को ओरल कैंसर हुआ था एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो स्नफ करते हैं, जो दांत, किसी को तो लगता है कि ये टबैको वाली पेस्ट दांतों को मजबूत बनाती है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि टबैको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल। वो कुछ टबैको एक ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, इट इज नो मेडिकल वैल्यू। अल्कोहल एटलीस्ट कभी वाटर बेरीज कंपाउंड में थोड़ा 1%, 0.5% डाल के थोड़ा उसका इफेक्ट है। नॉट सेइंग अल्कोहल इज गुड, बट एटलीस्ट सम मेडिकल। टबैको हैज नो मेडिकल यूज और नो मेडिकल वैल्यू। हम अभी बात कर रहे थे वेपिंग, दिस इज कमिंग अप इन यंगस्टर्स, और वो बोलते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, इलेक्ट्रिक सिगरेट पीते हैं, उसमें तो टोबैको नहीं होता है, वो हार्मफुल नहीं होगा। पर रिसर्च अभी दिखा रहा है कि इसकी वजह से लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज हैपनिंग, लंग में इन्फ्लेमेशन होता है और ये अभी कैंसर भी पैदा कर सकता है। क्योंकि जो मैंने कैंसर स्टिक में जो सब बाकी के द्रव्य दिखाए थे वो सब ये स्मोक में रहते हैं, तो ये आपको हार्म करता है। और अगर बच्चों को आपने देखा ये स्मोक करते हुए, उनको बताना कि यस टोबैको नहीं है इसमें, बट बाकी सब वो हार्मफुल चीजें हैं जो एक सिगरेट में होती है। तो प्लीज दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू टोबैको। और छोड़ने के क्या फायदे? आप अगर क्विट करते हो टोबैको, आप विद इन फ्यू मिनट्स योर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स बिकमिंग नॉर्मल। विद इन फ्यू आवर्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्डअप होती है बॉडी में वो कम होना चालू होती है। सर्कुलेशन विद इन वीक्स इंप्रूव होता है और लंग फंक्शन
will improve. So in 10 years you will have the same risk as a non-smoker. So 10-15 साल में अगर आपने छोड़ा टबैको, आज अगर खा रहे हैं, तो अगर 15 साल के बाद आपका रिस्क कैंसर का एक नॉन स्मोकर या नॉन टबैको यूजर के इसमें तब्दील हो सकता है अगर आप जल्दी टबैको छोड़ते हैं तो। कमिंग टू हेड नेक कैंसर, जैसे मैंने बोला हेड नेक जो ओरल कैंसर, उसके चिन्ह क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स। तो आपके मुंह में कोई छाला हो गया जो हील नहीं हो रहा है। कभी कभी छाले तो सबके मुंह में होते हैं, लेकिन जो छाले होते हैं वो कोई ट्रीटमेंट से 5-10 दिन में हील हो जाते हैं। अगर हफ्ता 2 हफ्ता के ऊपर कोई छाला हील नहीं हुआ, लाल या रेड और व्हाइट पैच आपके मुंह में आता है जो अगेन इज नॉट गोइंग अवे। सोर थ्रोट, आपका घसा सर्दी जैसा लग रहा है, आवाज बदली हुई है लेकिन ये ठीक नहीं हो रही। आपने ENT को दिखाया, ENT बोला आपके घर में तो कुछ है नहीं, सर्दी के ऊपर ट्रीटमेंट ले चुके हैं आप, 7-10 दिन 14 दिन हो गए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको कैंसर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होर्सनेस मतलब आवाज चेंज होना, आवाज बदली होना, हॉट पोटैटो स्पीच बोलते हैं, जैसे टंग के पीछे जैसे एक बटाटा रख दिया हो, ऐसे वो ट्यूमर आता है तो वैसी ही आवाज बन जाती है, उसको हॉट पोटैटो स्पीच बोलते हैं हम लोग। खाने में तकलीफ होना, नेक नोड, मैं नेक नोड के बारे में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि हमारे कंट्री में कुछ भी ग्रंथि थूक या गठान आती है नेक में तो उसको ट्यूबरकुलोसिस समझा जाता है और बिना जांच किए ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। तो ये ऐसे लाल और रेड पैचेस और व्हाइट पैचेस आपके मुंह में अगर दिखे या किसी के मुंह में दिखे तो इसका प्लीज तुरंत जांच कर लेना, इसको निग्लेक्ट नहीं करना क्योंकि ये इनिशियल साइंस ऑफ ओरल कैंसर है। जब तंबाकू खाते हैं और आपके मुंह में ऐसे अगर लाल या व्हाइट पैचेस आ गए तो इसको प्लीज चेकअप कराना। दीज आर कॉल्ड प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, इसमें मैलिग्नेंसी में तब्दील हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको हेड नेक कैंसर के बारे में बताऊंगा। आप जाते हो तो आप डॉक्टर को पूछते हो मेरी स्टेज क्या है, ये स्टेजिंग क्या होती है, और आपको अगर स्टेज 4 मैंने बोल दिया तो डर लगता है कि मैं स्टेज 4 में हूँ, अभी सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। ये स्टेजिंग क्यों की गई है कि हम लोग इंटरनेशनली नेशनली बात कर सके, हमारे जब हम रिकॉर्ड रखें तो हमको मालूम पड़े कि स्टेज 1-2 का क्या आउटकम है, स्टेज 3-4। इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्टेज 1 इज 2 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर, स्टेज 2 इज 2 to 4 सेंटीमीटर, स्टेज 3 इज मोर देन 4 सेंटीमीटर। सो 3.99 सेंटीमीटर अगर आपका ट्यूमर का मेजरमेंट है तो वो स्टेज 2 में जाएगा, और 4 या 4 पॉइंट तो 1 मिलीमीटर का फर्क है उसमें। लेकिन ये स्टेजिंग ऐसी है, तो आप स्टेजिंग जब आप डॉक्टर को पूछते हो तो आप डरो नहीं, क्योंकि कई बार ये स्टेजिंग इज नॉट रियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आउटकम। तो 1 मिलीमीटर के फर्क से आप स्टेज 2 से स्टेज 3 में चले जाते हो। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप स्टेज से डरो नहीं। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा ट्यूमर होगा स्टेज 4 का तो वो खराब आउटकम देगा, लेकिन जस्ट बाय स्टेज 4 डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज ओवर, वी कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो हम पहले स्टेज करते हैं कैंसर को, पहले सब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और एक स्टेजिंग करते हैं। स्टेज 1-2 हम एक कैंसर की 3 मोडालिटी है, ओके, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। स्टेज 1-2 अर्ली स्टेज में इसमें से कोई भी एक मोडालिटी, यूजुअली सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी चूज करते हैं। स्टेज 3-4 में गया तो हमको इसको कंबाइन करना पड़ता है, हम सर्जरी और प्लस माइनस कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं, तो हम कंबाइन करते हैं। वो एक ट्रीटमेंट फिर काम में नहीं आता, 2 या 3 ट्रीटमेंट आपको लगेंगे। और इसके बारे में बता रहा था, आपको अगर गठान आ गई तो इसकी पहली ट्रीटमेंट है, प्लीज अगर डॉक्टर बोले इसकी बायोप्सी, ओपन बायोप्सी कराओ, तो वो नहीं कराओ। इसकी पहली जांच होती है एक सुई की जांच, जिसको FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। 95 to 99% ऑफ द टाइम आपको इसमें से डायग्नोसिस मिल जाएगी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जहाँ के बायोप्सी की जाती है, नोड निकाला जाता है और उसमें कैंसर आता है, और कैंसर और कहीं छुपा रहता है। तो दैट अप स्टेजेस, इसको स्टेज चेंज हो जाता है और वो कैंसर का ट्रीटमेंट फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्लीज बायोप्सी मत करने बोलिए, एक FNAC का इलाज इज इनफ। अभी मैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि हमने कैसे ओवर द इयर्स ट्रीटमेंट में चेंजेस लाए हैं। जैसे एक ओरल कैंसर है, जैसे एक छोटा सा कैंसर, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट, ये छोटा सा एक अल्सर है, तो इसको आप सर्जरी भी कर सकते हैं, रेडिएशन भी कर सकते हैं। तो हम कैसे चूज करेंगे आपके लिए, तो ये हम सब साथ में मिलके इसको डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये 2 कैंसर है, ये एक छोटा सा कैंसर है लिप का, और ये कैंसर छोटा सा है टंग पे है। तो इसको मैं अगर निकालूं अच्छे से तो थोड़ी सी टंग खराब निकल जाएगी, उसको मैं बंद कर दूंगा, ना कोई टंग मूवमेंट में फर्क आएगा, ना बात करने में, ना खाना खाने में। आप घर जा सकते हैं 2 दिन में, ट्रीटमेंट इज ओवर। इसको मैं अगर निकालूं और अच्छे से प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो तो ये आपका मुंह ऐसे छोटा हो जाएगा। हाँ,
तो इसको माइक्रोस्टोमिया बोलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे सुपरफिशियल लीजन को मैं बोलूंगा कि मैं अब इसको ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं इसको रेडिएशन करूंगा। तो इसको नीडल्स डाली जाती है, उसको ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं, जहाँ पे ऐसी वायर्स डाली जाती है लिप में और उसकी ट्रीटमेंट होके इसको जला के आपका नॉर्मल लिप वैसे का वैसा रहता है। तो ट्रीटमेंट का चॉइस जो होता है, आप सर्जन के पास जाओ, ट्रीटमेंट चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ही मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट जो चॉइस होता है, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और कीमोथेरेपी सब साथ में मिलके इसको डिसीजन लेते हैं इसको क्या किया जाए। कोई स्थिति में सर्जरी बेटर है, कोई स्थिति में रेडिएशन बेटर है, वो चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पेशेंट है, ये एंगल माउथ है, इसको निकाले तो आपका माउथ बंद होना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको ब्रेकीथेरेपी दी, वायर्स डाले और रेडिएशन किया, और ये टोटली, ये दूसरी पेशेंट है एंगल माउथ, कंप्लीट ट्रीटमेंट जैसे देख रहे हो आप, टोटली नॉर्मल लिप, ट्यूमर हैज गॉन अवे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनका कोई ट्रीटमेंट हुआ है। तो दीज आर द एडवांसेस दैट वी हैव, बट द ट्रीटमेंट चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम ऑर्गन प्रिजर्व करते हैं, पहले क्या होता था, कैंसर मतलब ऑपरेशन करके उसको निकाल देना, जैसे गले का कैंसर है। जब मैंने ज्वाइन की ट्रेनिंग 90s में, कोई भी कैंसर, एडवांस लैरिंजियल कैंसर हो, जो गले का वॉइस बॉक्स का कैंसर बोलते हैं, हम पूरा वॉइस बॉक्स निकाल देते थे, या अर्ली कैंसर के लिए भी हम ओपन सर्जरी करते थे, जैसे खोल के फिर कार्टिलेज निकाल के उसका सर्जरी करना, तो उसमें काफी प्रॉब्लम होते थे। अभी हम क्या करते हैं, अगर छोटा सा कैंसर रहा तो हम रोबोटिक मुंह के अंदर से ऑपरेशन करते हैं। रोबोटिक, ये रोबोट है और ये लेजर है, तो ये लेजर से हम ऑपरेशन करते हैं। जैसे मैं दिखाऊंगा, ये कैंसर है, आपके आवाज की पेटियां हैं, ये आवाज की, इसको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ये कैंसर वहां बैठा हुआ था, पहले दिनों में हम बाहर से खोल के इसको निकालते थे तो आवाज पे बहुत फर्क पड़ता था। अभी हम इस पे लेजर सर्जरी करते हैं। लेजर का मार्क है जो मैं अंदर से, मुंह के अंदर से कर रहा हूँ, ये लेजर के मार्क से हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, इसका हीलिंग होता है और ये एकदम पेशेंट ठीक होता है। जैसे कि ये फोटो है, ये कैंसर था पेशेंट को, ये मैंने लेजर से निकाला, और आप देख सकते हैं 8 हफ्ते बाद ये फोटो लिया मैंने, आपको समझता भी नहीं है। आवर बॉडी इज वंडरफुल, गॉड हैज मेड आवर बॉडी सो गुड दैट इट हील्स ब्यूटीफुली। तो डॉक्टर खाली थोड़ी सी ट्रीटमेंट करता है, लेकिन जो बॉडी की हीलिंग है दैट इज फैंटास्टिक, इट इज अ रियली गुड मशीन। तो वो हील अच्छा हो जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। ये रोबोटिक है, हम रोबोटिक भी ये मुंह से करते हैं। अभी नाक के अंदर का कैंसर, पहले हम खोल के ऑपरेशन करते थे, ये नाक के अंदर का कैंसर है, ऊपर बैठा हुआ है ब्रेन की तरफ। पहले हम खोल के ऑपरेशन करते थे और फेस डिसफिगर हो जाता था, जैसे ये चपट होना, नाक बिगड़ जाना, क्योंकि हम ये खोल के ऑपरेशन करते थे। अभी हम इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम थ्रू द नोज जाते हैं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसको बोलते हैं। नोज में जाके, अंदर जाके इसको ट्यूमर को निकालते हैं, और वी यूज नेविगेशन फॉर दैट। सो अंदर ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास नेविगेशन होता है, हमको एग्जैक्टली मालूम पड़ता है कि मैंने जो स्कोप डाला है वो कहाँ तक जा रहा है, आपकी मेन ब्रेन कहाँ है, वेसल्स कहाँ है, नर्व कहाँ है, वो सबको बचा के हम वो खाली ट्यूमर को निकालते हैं। एंड द आउटकम इज वेरी गुड। जैसे कि नाक पूरी ठीक है, कोई इंसिजन नहीं है फेस पे। नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी बोलते हैं, नेचुरल ऑरिफिस, नाक से जाओ, मुंह से जाओ, यहाँ से जाके छोटा ट्यूमर जो है वो हम निकालते हैं। और एक ऑर्गन प्रिजर्वेशन, मैंने जैसे बताया आपको कि पहले हम खाली ऑपरेशन करते थे, अब हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का सहारा लेते हैं और ट्रीटमेंट पूरी करते हैं। जैसे लोकली एडवांस्ड वॉइस बॉक्स का कैंसर अगर रहा तो पहले आपको ऑपरेशन करके पूरा वॉइस बॉक्स निकालना पड़ता था, और ये परमानेंट ट्रैकेस्टोमी, मतलब ये पेशेंट को इनका आवाज का पेटी ही नहीं है, सांस का नली ही नहीं है, यहाँ से वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, वो यहाँ से सांस ले रहा है और ना बात कर पा रहा है। तो ये पहले जमाने में हम ये करते थे। फिर कुछ स्टडीज आए जहाँ पे हमने कीमोथेरेपी और रेडिएशन का सहारा लिया और कहा कि अगर ये सर्जरी इतनी खराब है कि पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो क्यों ना इनकी आवाज की पेटी बचाई जाए, इवन इफ ही हैज अ एडवांस कैंसर। और ये कुछ स्टडीज आए जिसमें हम लोग ने लैरिंक्स प्रिजर्व किया, और these are all technical terms, so I will. So now, even if you have advanced cancer, without surgery, in some cases, using chemotherapy and radiation together, we can preserve form and function, और पूरी आवाज की पेटी आपकी बचाई जा सकती है। तो these are the advantages of multidisciplinary, not only surgery but chemotherapy and radiation therapy. अभी ये मेरा एक पेशेंट है, अनफॉर्चुनेटली इनको T4 कैंसर था जो बाहर आ चुका था, I had to do a total एरेक्टेक्टमी। लेकिन इसमें भी अभी मैं बता रहा हूँ फंक्शन में वी हैव गॉन अहेड। तो ये पेशेंट है, ही इज अ बिजनेसमैन, ही हैज टू स्पीक, तो हमने एक वाल्व बिठाई जिसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। उनकी पूरी आवाज की पेटी निकल चुकी है, लेकिन ये यहाँ पे जो वाल्व बिठाया मैंने वो दबा के ही कैन टॉक बाय जस्ट पुटिंग अ हैंड हियर, ही गेट्स अ नॉर्मल वॉइस। ओके।
and he can do his daily work. He goes abroad. वो trader है, कोल्हापुर में है, तो he goes all over the world and does his work. मैंने अभी थोड़े से लास्ट स्लाइड्स है, मैं थोड़ा सा रिसर्च जो हमने किया टाटा हॉस्पिटल में, जो हम यहाँ भी करते हैं अभी, कि हमारे पास एक प्रश्न आया कि कैसे हम इंडिया में हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हम बाहर जाते थे ना कॉन्फ्रेंसेस में, वहाँ हमको सब बोलते थे कि अरे ओरल कैंसर तो आपका कैंसर है, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप कुछ आंसर क्यों नहीं लाते ये ओरल कैंसर के लिए. तो हमको बहुत वो टीज करते थे कि ओरल कैंसर तो आपका कैंसर है, आपसे हमको कुछ सीखना चाहिए, आप कुछ करते ही नहीं हो. तो हमने एक स्टडी की जहाँ पे अगर बड़ा ट्यूमर है, जैसे ये ट्यूमर है, बहुत बड़ा ट्यूमर है, तो इसकी ये हड्डी पे गया नहीं है अभी तक, लेकिन हड्डी के बहुत बाजू में बैठा है, तो हमको इसकी हड्डी निकालनी पड़ती है. तो हमने ये देखा कि इसकी हड्डी निकालने के बावजूद हड्डी में ट्यूमर नहीं है, पर हड्डी निकालनी पड़ती है, जॉ बोन निकालना पड़ता है, क्योंकि वो ट्यूमर उसके बाजू में बैठा है. तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको ट्यूमर को कम किया जाए कीमोथेरेपी का सहारा लेके, और ये उनकी मैंडिबल जो है जॉ बचाई जाए. तो मैं आपको दिखाऊंगा हमने क्या किया. तो हमने कीमोथेरेपी का सहारा लिया, 2 साइकिल कीमोथेरेपी दी ऐसे पेशेंट में, और फिर ऑपरेशन किया, और दूसरे आर्म में हमने उनका जैसे था वैसे ऑपरेशन किया. ये एक कार्टून है जिसके मैं समझाऊंगा आपको. तो ये ट्यूमर बैठा है बोन के बाजू में. अब ये इतना बड़ा ट्यूमर है, तो मुझे यहाँ से और यहाँ से काट के इसको निकालना होगा, और फिर प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, जो सब जगह पे अवेलेबल नहीं है. बोन जो डॉक्टर भरत दिखाएगा वो प्लास्टिक सर्जरी सब जगह हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है. तो इसको हम क्या करेंगे कि हम कीमोथेरेपी देते हैं, पहले इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं कीमोथेरेपी के बाद में, और फिर हड्डी का खाली ऊपर का हिस्सा जितना ट्यूमर है उतना निकाल के पूरा हड्डी बचाने का कोशिश करते हैं. तो ये एक पेशेंट है जहाँ ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, इसको यहाँ से और यहाँ से निकालना जरूरी था. तो हमने कीमोथेरेपी दी और ये ट्यूमर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया, और इसमें हमने उनकी हड्डी बचाई. तो ये जो हमने स्टडी की उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ऑपरेशन के पहले कीमोथेरेपी देके ऑर्गन बचाना. टंग कैंसर, काफ़ी बड़ी टंग कैंसर है, पूरी टंग निकालनी पड़ रही है, पेशेंट खाएगा कैसे. तो फिर हम कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक करने की कोशिश करते हैं अगर अवेलेबल है तो. तो ये स्टडी है. तो इसमें हमने 48% जिन्होंने कीमोथेरेपी दी, ऑलमोस्ट 50% लोग में हमने मैंडेबल उनकी बचाई, और उनको कोई प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, और कोई सर्वाइवल में डिफरेंस नहीं था. ये हमने पब्लिश की, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल्स इन ऑन्कोलॉजी में हमने पब्लिश की है ये स्टडी. तो बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर इज अ टीम एफर्ट. ये मेरे अकेले का काम नहीं है. आई नीड अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट, डायटिशियन. ये सब लोग मुझे लगते हैं टू मेक अ पर्सन गेट बैक टू हिज नॉर्मल डेली एक्टिविटी. सो MDT, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, और राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट राइट होना चाहिए. कि आप ऐसा नहीं करो किसी को भी कीमो लगा दो, किसी को भी पहले रेडिएशन लगा दो, तो ये गलत सीक्वेंस हो जाता है. सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस इज ऑन ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स. यस, हमको कैंसर ठीक करना है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी और उतना ही ज़रूरी है कि हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दें, और पेशेंट को बात कर सके, खाना खा सके, और सोसाइटी में वापस जा सके, इतना मजबूत बनाए. थैंक यू वेरी मच. अभी भरत विल स्टार्ट. ये जैसे मैंने बताया, लोग कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आते नहीं थे, क्योंकि हमारे पास लोकल फ्लैप्स थे और पेशेंट इतना अच्छा दिखता नहीं था. तो इसमें जो चेंज हुआ है वो डॉक्टर भरत आपको दिखाएंगे. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इधर बुलाया, और संडे के दिन आप सब इधर आए हैं इस टॉपिक के बारे में सुनने में. टेक्निकल है, मेडिकल नॉलेज है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है. तो मैं इसको ट्राई करूँगा जितना इंटरेस्टिंग बना सकूँ, जितना सिंपल रख सकूँ. सो प्लास्टिक सर्जरी इन कैंसर. पहली बात तो प्लास्टिक सर्जरी एक वर्ड ही अलग है, पता नहीं उसका मतलब क्या है. आधों को तो पता नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी ऐसा नाम ही क्यों दिया है उसको. प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं कि कुछ कॉस्मेटिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं. बट बेसिकली इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है प्लास्टिकोस. प्लास्टिकोस मतलब किसी को आकार देना. जैसे हम पॉटरी कर रहे हैं, इस मटके को शेप दे रहे हैं, दैट इज प्लास्टिक सर्जरी. तो प्लास्टिक सर्जरी एक तरीके से किसी चीज़ को उसके नॉर्मल आकार और फंक्शन तक पहुंचाना है. नाउ वो कैंसर में हो सकती है, वो ट्रॉमा में हो सकती है, वो किसी के बाल लगाने में हो सकती है, किसी के पेट कम करने में हो सकती है. ऑल दैट कम्स अंडर प्लास्टिक सर्जरी. एंड जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है. सुश्रुता, फादर ऑफ सर्जरी,
he has been documented to do plastic surgery since centuries. जो आज के दिन पे हम नाक की सर्जरी करते हैं ये फोरहेड का टिश्यू यूज करके, वो एक्चुअली सुश्रुता ने पहली बार लिखा है और ये चीज आज तक रिकॉग्नाइज्ड है इंटरनेशनली आल्सो. सो उसकी जो रूट्स हैं वो हमारे देश से ही शुरू हुई है. और इसके बारे में एक चीज बहुत अच्छी है कि ये हमारे सिर से लेके पैर तक हर चीज पे प्लास्टिक सर्जरी लग सकती है. जहाँ पे कोई अटकता है वहाँ पे वो प्लास्टिक सर्जन का ओपिनियन लेता है कि इसमें क्या कर सकते हैं. डायबिटीज की वजह से पैर नहीं ठीक हो रहा है तो उसमें प्लास्टिक सर्जन पूछ सकते हैं. कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको क्लेफ्ट है, उसमें क्या कर सकते हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी यूज होता है. ओरल कैंसर ट्रीट करने के बाद खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी लग सकती है. सो कॉस्मेटिक सर्जरी आई वुड से इज अ बहुत छोटा सा एक हिस्सा है अगर देखा जाए. पब्लिसाइज बहुत हो गया है, लेकिन कैंसर केयर, क्लेफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल, जो बच्चों को बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज होते हैं, बॉडी कॉन्टूरिंग अगेन कॉस्मेटिक सर्जरी, बर्न्स. जब शुरुआत हुई थी प्लास्टिक सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब सोल्जर्स आते थे उनको एक्सीडेंट्स में लिम इंजरी, फेस इंजरी, बर्न्स होते थे, तब वहाँ से वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. तो बर्न्स बहुत टाइम से प्लास्टिक सर्जरी पे डिपेंडेंट है उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए. ट्रॉमा एक्सीडेंट्स, माइक्रोवेस्क्युलर एक चीज़ अभी जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस. एक्सीडेंट के बाद एक हाथ नहीं चलता है, कोई प्लेक्सिस इंजरी हो गई है, या कुछ बचपन से ही एक हाथ में चलने में प्रॉब्लम होता है, वो सब प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आता है. सो इट इज़ अ वेरी बिग फील्ड. किसी एक तरीके से मैं नहीं समझा सकता कि वो ये प्लास्टिक सर्जरी में एग्जैक्टली आता है, बट अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो एक ओपिनियन, प्लास्टिक सर्जरी हैज़ बिकम अ डिक्टम. इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशलिटी. आज का टॉपिक मोस्टली ओरल कैंसर का है, तो मैं उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूंगा और उसके बाद आपको बाकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा. दिस इज अ कॉमन फाइंडिंग. हमारे देश में टोबैको यूसेज बहुत ज़्यादा है, स्पेशली लोअर इकोनॉमिक सोसाइटी में. वो इग्नोर भी करते हैं, तो वो धीरे धीरे इतना अनप्लीजिंग हो जाता है देखने में उससे एंड सोशल इंटरेक्शन में कि लोग छुपा छुपा के भी इस स्टेज पे हमारे पास आते हैं. नाउ इसमें हम प्लास्टिक सर्जरी कैसे करते हैं, जैसे डॉक्टर चौकर ने बताया कि सर्जरी अभी भी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है. रेडिएशन है, कीमो है, और ये सब मिला के भी ट्रीटमेंट होता है. लेकिन अगर कैंसर को हम सेफली मार्जिन्स के साथ निकाल सकते हैं तो पहला स्टेप सर्जरी ही है. बट अगर किसी के फेस पे सर्जरी करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं, जैसे कि जबान का कैंसर है तो जबान का कुछ हिस्सा निकल जाएगा, नीचे के जॉ का है तो जॉ लाइन का कुछ सेगमेंट बोन का निकल सकता है, चीक, आउटसाइड स्किन, या ऊपर नाक का कुछ हिस्सा. तो बेसिकली अगर वहां से कुछ टिश्यू निकाल रहे हैं तो वहाँ एक गड्ढा हो जाएगा और उसके फंक्शन में कॉम्प्रोमाइज होगा. हमें प्लास्टिक सर्जरी करके वहां पे कुछ ऐड करना है, जैसे कि वो जितना पहले जैसा हो सके, वो टारगेट है. नाउ ऐड करना मतलब हम खुद के बॉडी से ही कुछ टिश्यू लेके वहां लगा सकते हैं, किसी और का नहीं लगा सकते. कोई आर्टिफिशियल नहीं आता, प्लास्टिक भी नहीं आता, बेसिकली खुद ही का ही बॉडी टिश्यू लेना है. तो सपोज नीचे का जॉ लाइन का कुछ हिस्सा अगर निकल जाता है तो हम पैर की हड्डी का इस्तेमाल करके उनको एक नया जॉ बना के दे सकते हैं. नाउ वो जो है बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट उसके आउटकम्स इतने अच्छे हैं कि यू कैन नॉट मेक आउट मेनी टाइम्स कि ये उसका एक नया जॉ है. वो आपके खाने पीने, बोलने और आगे जाके दांत लगाने में भी हेल्प करता है. सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड फ्री फ्लैप्स. हम क्या करते हैं कि कोई टिश्यू बॉडी का, जैसे कि यहाँ फेस का कैंसर हुआ है, फेस के कैंसर में निकालने के बाद ऊपर का कुछ हिस्सा, नीचे का जॉ लाइन निकाला है, तो हम पैर से उनका टिश्यू ले सकते हैं और उसकी जो नसें होती हैं वो गर्दन की नसों के साथ जोड़ देते हैं. सो दैट इज हाउ इट सर्वाइव्स एंड दिस इज नोन एज माइक्रो सर्जरी. बेसिकली ये माइक्रोस्कोप में वेरी हाई मैग्निफिकेशन के अंदर हम वो नसें जोड़ते हैं. तो जब नसें जोड़ते हैं तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है. बाय दिस वी कैन, हम जो चीज निकाली है उसको ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिक बना के दे सकते हैं खुद के बॉडी को टिश्यूज यूज करके.
एंड नाउ ये जो एडवांसमेंट है, आई वुड से पिछले 10-20 साल में हैज पिक्ड अप सो वेल दैट इट हैज बिकम स्टैंडर्ड ऑफ केयर। जैसे डॉक्टर चौकर के प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड आपने देखी थी कि कैसे फेस पे टिश्यूज लाने के पुराने अलग अलग तरीके होते थे। अब बिकॉज ऑफ माइक्रो सर्जरी हम एक बहुत नियर नॉर्मल फेस दे सकते हैं। Now, as you see, इन सब के फेस में बाहर आपको एक स्किन का पैच दिख रहा है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मुंह के अंदर से गया है, अंदर का गाल, लोअर जॉ विथ स्किन एक्सेस। नाउ अगर आप देखेंगे वो पैच अलग दिखता है, लेकिन चेहरे में कोई चेंज नहीं है। जो होठ है उसका भी कॉम्पिटेंस बहुत अच्छा है, खाने पीने बोलने में इट रियली डजेंट अफेक्ट। ऑल ये सब पेशेंट्स ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद माइक्रो सर्जरी, फ्लैप सर्जरी होती है और उनका रेडिएशन होने के बाद का अपीयरेंस है। अब वो डिपेंड करता है किसका कैंसर किस स्टेज पे था, कितना स्किन निकला, कितना एक्सरसाइज हुआ, कि फाइनल आउटकम्स कैसे आते हैं। बट हम प्लास्टिक सर्जरी के हेल्प से नियर नॉर्मल फॉर्म दे सकते हैं। पहली बात आ गई फॉर्म मतलब कैसा दिखता है, क्या शेप है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ और ये सब टेक्निकलिटी है कि इसमें से कितना कैंसर निकला, कौन से जॉ का निकला, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लास्टिक सर्जरी करने से वी कैन गेट बैक टू नॉर्मल जितना कर सकते हैं। ऑल दीज आर बिग कैंसर सर्जरीज। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि जैसे अभी ये ऑल ऑफ देम का लोअर जॉ पैर की हड्डी से बना है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड विद टाइम वो और भी अच्छा ही दिखता है। माउथ ओपनिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना दूसरी बात आती है फंक्शन की। फंक्शन में स्पीच, स्वॉलोइंग और डेंटल रिहैबिलिटेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ एक चेहरा बना के दे दिया लेकिन अगर स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ऑफ नो मीनिंग। सो गुड माउथ ओपनिंग, गुड स्कार्स, जॉ लाइन, ये सब बहुत ज़रूरी है, एंड वी आर एबल टू डू दिस विद आवर रिजल्ट्स एंड प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी अलग अलग चीज़ों का है। जैसे आप देखेंगे लिप का भी एक सेगमेंट एक्सरसाइज होता है, वो सब रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। डेफिनेटली एक पैच जैसा थोड़ा अलग दिखता है, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका फंक्शन वापस आ सके। अगर आप देखेंगे तो माउथ ओपनिंग, क्योंकि सपोज अगर इमेजिन करिए लोअर लिप का कैंसर है, सर्जरी हुआ है, अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं मेंटेन होगा तो खाना खाना, नॉर्मल चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, जो काफ़ी जगहों रिकंस्ट्रक्शन इनएडिक्वेट विदाउट प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है। सो वी आर एबल टू मेंटेन दैट। सेकेंड इज टंग रिकंस्ट्रक्शन। जबान जो है इतना यूनिक ऑर्गन है कि उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। बॉडी में कहीं और जबान है नहीं, हमें वो गैप को फिल करना है, जैसे कि जो बची हुई जबान है वो अच्छे से काम कर सके। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स का बाहर लीजिए जबान, ऊपर बाहर। आप देखेंगे कि आधा हिस्सा जबान है, आधा हिस्सा स्किन फ्लैप है, जो प्लास्टिक सर्जरी की है। ऊपर लीजिए जबान, बाहर, मुंह बंद करिए। 1 से 10 तक गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फंक्शन इजी नहीं है देना। विदाउट प्लास्टिक सर्जरी अगर 50-60% अगर टंग एक्सरसाइज हो जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बात नहीं कर सकते, बट प्लास्टिक सर्जरी हेल्प्स यू टू गेट बैक टू नॉर्मल फंक्शन। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माइक्रो सर्जरी, दैट चेहरे का बिना कुछ चेंज हुए, कोई नया स्कार नहीं है, कोई शेप नहीं है, आप ये फंक्शन दे सकते हैं। My name is Vasavi. 1. All these patients are just examples of tongue function. So ये कोई एक पेशेंट नहीं है जिसका स्पीच अच्छा है। We are able to give good speech in all these patients of tongue cancer. मेरा यहाँ पे सर्जरी हुआ है। Anyways, इसके बाद डेंटल रिहैबिलिटेशन। बहुत सारे पेशेंट्स को कंसर्न रहता है मुंह का कैंसर निकल जाएगा तो दांत निकल जाता है। प्लास्टिक सर्जरी करके जब हम बोन सेगमेंट देते हैं तो उसमें डेंटल इम्प्लांट्स लग सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल बोन में लग सकते हैं, बट वो फाउंडेशन देना, मतलब वहाँ पे हड्डी होना, इज द प्री रिक्विजिट। उसके बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी आर एबल टू गिव डेंटल रिहैबिलिटेशन टू दिस पेशेंट्स। यू सी, ये जो पतली हड्डी दिख रही है आपको एक्सरे पे, ये पैर की हड्डी है, ये उसका नेचुरल जॉ बोन है।
हम ये हड्डी के अंदर डेंटल इम्प्लांट्स डाल सकते हैं और उसके बाद से पूरा दांत का एक स्ट्रक्चर आ सकता है। अगर ये बोन ना हो तो उनको कोई दांत नहीं है उधर, लाइफ लॉन्ग सॉफ्ट डाइट पे हो जाता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ कैंसर निकालना इज़ नॉट द एंड पॉइंट, हमें यहाँ तक पहुँचना है जिसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर 3 years 5 years कैंसर फ्री सर्वाइवल हो गया है, अभी ऑलमोस्ट सर्टन हो गया है कि आप उस चीज़ से मुक्त हो गए। ये सब कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। रेडिएशन होने के बाद चेहरे का जो बियर्ड सेगमेंट है वो भी चला जाता है। वी आर एबल टू डू हेयर ट्रांसप्लांट्स इन दीज फ्लैप्स ऑल्सो। आपको ये पैच दिख रहा है, ये बेसिकली हेयर कैंसर सर्जरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी किया है, बट ये साइड के हमें बाल भी लगा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये इम्पोर्टेंट या वो प्रायोरिटी है, बट ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल फॉर द सिंपल रीजन कि पेशेंट को कंफर्टेबल होना चाहिए सोसाइटी में वापस जाने के लिए, किसी से इंटरेक्ट करने के लिए, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आने के लिए। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है क्योंकि जब हम पैर की हड्डी लेते हैं तो वो सीधी हड्डी है और उसको जब जॉ में बनाना है तो उसको एक शेप देना रहता है जैसे कि पेशेंट के पहले जॉ के साथ मैच हो। हम कंप्यूटर और 3D प्रिंटिंग के साथ एक एग्जैक्ट जॉ लाइन बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना निकाला है, और ये सब कटिंग गाइड्स मिलते हैं। आई मीन ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग से ही बोरो किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर इमेजिंग, और वो मैन्युफैक्चरिंग की से ही यूज़ किया है कि हम उसको एक सही शेप दे सकते हैं। सो बेसिकली CT स्कैन पे हम डिसाइड करते हैं कौन से कट्स हैं, वो कट्स के हिसाब से हम फाइनली एक जॉ लाइन दे सकते हैं जो वो साइड के जॉ लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच होता है। ये रही ओरल कैंसर के बारे में बात। ओरल कैंसर प्रोबेबली प्लास्टिक सर्जरी का सबसे बड़ा पोर्शन है और सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्शन भी है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं वो हम एग्जैक्टली नहीं दे पा रहे, लेकिन हमें इतना कोशिश करना है कि हम जितना क्लोज आ सकें। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी कैंसर में बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है, जैसे ऑर्थो कैंसर्स मतलब अपर लिम, लोअर लिम, ये काफ़ी कम इंसिडेंस है। जैसे ओरल कैंसर 30% चांस है, हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर 1% है। 1% ऑफ ऑल ट्यूमर्स आर सार्कोमस, बट वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्जरी होता है। उन सब में प्लास्टिक सर्जरी लगती है बेसिकली टू गेट बैक टू नॉर्मल फंक्शन। एंड हाथ किससे इस पेशेंट है, इसमें नर्व्स, टेंडन्स, आर्टरीज, स्किन फ्लैप्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। ये बेसिकली इमेजेस हैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ एक एलिमेंट पे आके नहीं रुक जाता। अभी इनका आप देखेंगे तो नी कैप का जो हिस्सा है ये निकाल दिया था, ये उनके बैक से टिश्यू यूज करके लगाया है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। अगर मैं आपको सर्जरी का पहले का फोटो दिखाऊं तो बहुत डर लगता है देख के क्या हुआ है, लेकिन जब बनने के बाद इट लुक्स एज गुड एज कि नया नी कैप बना के दिया है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रो सर्जरी। ट्रॉमा इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। एक्सीडेंट्स होने के बाद हील टिश्यूज निकल जाता है, सो वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट। सो प्लास्टिक सर्जरी इज एबल टू हेल्प विद ट्रॉमा ऑल्सो। देयर इज सो मच ऑफ इंडस्ट्री हियर कि ये सब एक्सीडेंट्स मेनी टाइम्स कैन हैपन एंड इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड विद प्लास्टिक। इफ यू सी दिस पेशेंट, इनका बाइक एक्सीडेंट के बाद चेहरे का हिस्सा सेंटर पार्ट पीछे चला गया था बिकॉज देयर वाज अ मिसिंग बोन। अगेन हम पैर की हड्डी का इस्तेमाल करके एक अपर जॉ लाइन बना के दे सकते हैं। एंड यू सी दिस आर द इमेजेस पोस्ट 3 months आफ्टर द सर्जरी। दैट मीन्स ये पहले के फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर का चेहरा है ये एक तरीके से अंदर ही है, बट अब इसको एक आगे का प्रोजेक्शन मिला है बिकॉज वो मिसिंग बोन हम दे सकते हैं। इसके आगे इस पे नाक बना हो, नेजल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेंटल रिहैब हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर इज अनदर कंपोनेंट। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो प्रॉब्लम इस ट्रीटमेंट में फ़िलहाल ऐसी है कि सारा एम्फेसिस कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर है। कीमोथेरेपी अच्छी हो गई है, सर्जरी अच्छी हो गई है, बट वो ऑर्गन को रिकंस्ट्रक्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो सिमिलरली हम बॉडी का खुद का टिश्यू जैसे एब्डोमेन का टिश्यू या बैक का टिश्यू लेके हम टोटल मैस्टेक्टोमी के बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। सो दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड अ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ ऑन्को केयर। मतलब कैंसर सर्जरी के हर टाइप ऑफ कैंसर में प्लास्टिक सर्जरी का रिक्वायरमेंट है बिकॉज आफ्टर सर्जरी
हमें उसको नियर नॉर्मल तक लाना है. We at Nanavati are able to do, so I have a big department. I am not the only plastic surgeon, although मैं majorly onco में हूँ, but we have 3-4 plastic surgeons, so we do cosmetic repairs also, like hair transplants, gynecomastias, rhinoplasties. ये आज के topic पे नहीं है, but I want to tell you that it is much more than just one picture of plastic surgery. So thank you very much for inviting us to give a talk over here. कोई भी सवाल हो, आई एम हैप्पी टू आंसर. થેન્ક યુ સો મચ સર. સૌપ્રથમ તો સુરત સિટીની અંદર નાણાવટી મેક્સ સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના બંને સ્પીકર જે આવ્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. સર आप दोनों को विनती है कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें. ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, પણ આપનું ડાયાબિટીસ ને બીપી કેટલું છે તે અમને ન જણાવતા, કારણ કે નાણાવટી મેક્સની ઓપીડીના ચાર્જીસ બહુ ઓછા છે. આપ ત્યાં વિઝિટ કરી શકો છો, એટલે કોઈ પણ પર્સનલ ક્વેશ્ચન ના પૂછતા, इन जनरल क्वेश्चन જ પૂછજો. जी सर. आपने प्रिवेंशन बहुत अच्छा बताया, लेकिन ऐसे फूड आइटम्स भी बताइए जिस पे भी रिसर्च हुई होगी काफ़ी, कि ये फूड आइटम्स अगर लोग लें रेगुलर बेस पे तो मतलब जैसे मैंने पढ़ा कि बीट रूट खाने से कैंसर काफ़ी अवॉइड होता है. इस तरह की कोई अगर आपकी जानकारी में है रिसर्च तो वो थोड़ा शेयर करें तो लोग ज़्यादा सजग होंगे. तो ये अच्छा सवाल है, लेकिन क्या होता है कि आप आजकल इंस्टाग्राम है, सब रील्स होते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई बोलता है बीटरूट खाओ, कोई बोलता है हल्दी खाओ. लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि उसका कितनी मात्रा में. कोई बोलता है ग्रीन टी पियो, अभी कितनी ग्रीन टी पीने से इफेक्ट आता है. जो ड्रग होता है, कोई भी ड्रग ले लो, फूड एक ड्रग की तरह समझो आप, तो उसका ड्रग का एक डोज होता है. तो आप कितना ग्रीन टी पीने से आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, उसका कुछ मतलब इस पे स्टडी नहीं हुआ. सो आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना है. ओके, इंडियन फूड बाय इटसेल्फ इज अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन. तो एक कोई बीट रूट हो या जैसे आपने बताया बीट रूट, ऑल आर गुड. हम लोग हर इसमें हल्दी डालते हैं. हल्दी इटसेल्फ फॉर ईयर्स आयुर्वेदा में बोला गया इट प्रिवेंट्स. इंडिया में कोलोन कैंसर क्यों कम है? क्योंकि हम मीट कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, वी ईट हाई फाइबर वेजिटेबल्स खाते हैं. सो ऑल दिस टुगेदर सबका मिला होके एक अच्छा डाइट बनता है. एक कोई ऐसा फूड्स नहीं है जो आपको. बीटरूट इज हेल्दी, सो इज cucumber, so is green leafy vegetable. Everything has its own advantages. तो it has to be a mixed diet. एक कोई चीज आपको कैंसर प्रिवेंशन के लिए मदद नहीं करने वाली. और दूसरी चीज है ओबेसिटी, कि बहुत लोग को पता नहीं रहता है. ओबेसिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ कैंसर. जैसे टबैको, अल्कोहल है वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर एंड मेनी अदर कैंसर. हमको लगता है ओबेसिटी से हार्ट डिजीज होता है, डायबिटीज होता है. ओबेसिटी भी कॉजेज कैंसर, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है एंड इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू कैंसर. First of all, thank you very much, Devendra bhai, for giving us such important information about cancer and also for plastic surgery. अब सर एक्चुअली हमारा जो एल्डर्स लोग ने जो बोला था कैंसर यानी कैंसर, तो वो कितना सच है ये ज़माने में? सो कैंसर पहले ज़माने में ट्रीटमेंट काफ़ी एक सर्जरी पे लिमिटेड था, तो इतना सक्सेस रेट नहीं था. अभी कीमोथेरेपी जैसे मैंने बताया आ गया है, टारगेटेड थेरेपी आ गई है, इम्यूनोथेरेपी आ गई है. तो जो सर्वाइवल है वो बढ़ते जा रहे हैं. और जैसे मैंने बताया आपको स्टेजेस ऑफ कैंसर रहते हैं. तो यस 100% कैंसर में कोई नहीं बोलता, बट स्टेज 1 में चांसेस ऑफ क्योर मतलब 10 साल जीना, 20 साल जीना इज अबाउट 90-95%. और वो हर स्टेज बढ़ते जाता है, वो कम होते जाता है. तो स्टेज 4 में आपका चांस है 60-65%. तो कैंसर मतलब कैंसर नहीं. तो 60% वर्सेस 40% और 70 वर्सेस 30. तो आप क्या लोगे? 70% पीपल विल गेट गुड ट्रीटमेंट. यस 30% विल रिकवर, सम पीपल विल रिकवर बिकॉज द कैंसर में बी एग्रेसिव. वो टाइप ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर के ऊपर निर्भर करता है. तो कैंसर मीन्स कैंसर, दैट इज नॉट ट्रू एनी मोर. सम कैंसर्स यस इफ दे एग्रेसिव, बट मेजॉरिटी कैंसर्स आजकल कंट्रोल किए जा सकते हैं. और रिकरेंस आने के बाद भी विद इम्यूनोथेरेपी कई साल तक लोग जिंदा है. अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. संजय दत्त आपको मालूम होगा, एक्टर, उसको 5 साल पहले लंग कैंसर स्टेज 4 मतलब एक लंग कैंसर दूसरे लंग में फैल चुका था.
ये अगर उनको 10 साल या 5 साल पहले हुआ रहता तो वो 6 महीना भी नहीं जीते थे। आज वो 5 साल जिंदा है and he is doing his normal work and he is acting. That is because of newer therapies that have come. Some cancers we can treat even in advanced stage. दूसरा सर एक दूसरा एक कहावत है कि कैंसर आदमी तो मरता ही है लेकिन परिवार को भी खुआर करके वो परिवार को भी मार के जाता है, वो हकीकत में क्या है? करेक्ट। सो इसके ऊपर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्नोसिस हैज टू बी करेक्ट और परिवार को एक काउंसलिंग मिलनी चाहिए कि इसको ठीक होने के चांस कितने हैं। अगर आप स्टेज 4 एडवांस कैंसर में सब पैसा खर्च करोगे, अननेसेसरी कीमोथेरेपी सर्जरी अननेसेसरी करोगे, तो फिर वो सक्सेस नहीं होने वाला है और आप खर्चा भी बहुत करोगे। तो इसकी जो काउंसलिंग है, जो आप पहले डॉक्टर से बात करते हो कि सक्सेस का क्या चांस है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, उसका खर्चा कितना है, अगर ये बहुत एक्सपेंसिव है तो मेरे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट कुछ है क्या, ये सब जो डिस्कशन है वो पहले कैंसर स्टार्ट करने के पहले होनी चाहिए। फिर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि ठीक है चांसेस मेरे 70% है, खर्चा इतना है, मैं खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन आई विल टेक दैट 70। इफ द चांसेस 30%, तो मैं ही बोलूंगा आपको कि आप प्लीज इतना खर्चा मत करो क्योंकि अपने हाथ में ये चांस कम है। ओके, सो दैट डिस्कशन हैज टू हैपन बिफोर वी स्टार्ट ट्रीटमेंट। सर ये जो पाइल्स है उसमें 4 डिग्रीज होती है, ठीक है, तो वो कब तक कैंसर में ट्रांसलेट होता है ये अगर सर्जरी नहीं हुई तो? कौन सा? पाइल्स हेमरोइड्स। हेमरोइड्स इज नॉट कैंसर, वो तब्दील नहीं होती है सर्जरी। सर मेरे एक फ्रेंड के फादर का ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। आफ्टर 1.5 ईयर उनके मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है प्लास्टिक सर्जरी, तो इनसाइड में सम हेयर्स आर ग्रोइंग एक्चुअली। तो इज दिस नॉर्मल और समथिंग हैज बीन डन रॉन्ग बाय द प्लास्टिक सर्जन? नो, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जिस जगह से टिश्यू यूज करते हैं रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जो हेयर ग्रोथ हो रहा है उतना ही डेंसिटी वहाँ पे भी आएगा। नाउ द थिंग इज, इट इज पॉसिबल कि उस बाल को निकाला जा सकता है परमानेंटली, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन जब फर्स्ट प्राइमरी सर्जरी होती है तो ऑब्जेक्टिव अलग रहता है कि कैंसर निकल जाए, रिकंस्ट्रक्शन हो, आगे अगर रेडिएशन लगना है तो वो सब कंप्लीट हो, तब बाल पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट नाउ जैसे आप बोल रहे हैं 1.5 ईयर्स हो गए हैं, उनका गुड सर्वाइवल है। नाउ देयर आर लेजर्स, स्किन एक्सिजन हो सकता है जहाँ से वो हेयर परमानेंटली रिमूव हो सकता है। सो इट्स अ सेकेंडरी प्रोसीजर। प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट फाउंडेशन। Once that is complete, then you can do smaller changes. Lot of patients receive radiation in oral cancer, मतलब a good number of them. अगर उनको रेडिएशन लगता है तो वैसे ही वो सारे बाल झड़ जाते हैं, तो वो नहीं लगते। there are few patient जो अर्ली स्टेज में है, उनको ये हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है। We usually do at 1 year. 1 साल का डिजीज फ्री सर्वाइवल हो गया तो we can do these procedures. सर आप सर હવે ट्रीटमेंट के लिए इधर सूरत के लोग मुंबई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, तो ऐसे सूरत में भी से अच्छा मुंबई कैसा डिफरेंस कैसा कुछ है? मुझे नहीं लगता अभी पूरे इंडिया में कोई ज़्यादा डिफरेंस है। ऑफकोर्स स्मॉलर टाउन में एक तो रेडियोथेरेपी मशीन के कई डिफरेंस हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी डिफरेंस नहीं है। ये है कि एक पूरी टीम होनी चाहिए। अगर कोई हॉस्पिटल में फिर सर्जन डिसीजन ले रहा है तो वो बराबर नहीं है, मतलब पूरी टीम होनी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल आप सिलेक्ट करो, आई डोंट थिंक द डिफरेंस इज टू मच, वाइड गैप नहीं रहा है, बट ऑफ कोर्स वो टीम और उसका एक्सपीरियंस, दैट व्हाट मैटर्स। सूरत वाले ज़्यादातर मुंबई चले जाते हैं। हाँ, वो तो एक ट्रेंड है ना, तो ऐसा नहीं है कि सूरत में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आई थिंक यू हैव एक्सीलेंट डॉक्टर्स इन सूरत। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था सर, मेरा पर्सनल क्वेश्चन ऐसा है कि अभी आप लोग आए हैं नानावटी मैक्स हॉस्पिटल, तो सूरत में आपकी ओपीडी का टाइमिंग क्या है? आपको मिलना हो तो कब मिल सकते हैं? क्या क्या चार्जेस है और चैम्बर वालों को क्या डिस्काउंट मिलेगा? तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप बता दीजिए कि आपको मिलना हो, सर को मिलना हो, क्या ओपीडी रहेगा आपका, तो उसका थोड़ा ब्रीफ। तो यहाँ से आप हम हर महीने एक दिन हर महीने फिक्स रहता है हमारा। तो जैसे मैं लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ सूरत आता हूँ। हमारी ओपीडी का एड्रेस हमारी ओपीडी सोशियो सर्कल के पास जो सिविल हॉस्पिटल है ना, उसके सामने जनरल बिल्डिंग है, पूरा डॉक्टर का हाउस है, उस पे ग्राउंड फ्लोर पे नानावटी मैक्स सेंटर लिखा है, वो हमारा ओपीडी सेंटर है। दर महीने यहाँ मुंबई से जो नानावटी हॉस्पिटल के डॉक्टर है वही सूरत आते हैं, उसमें से 10 से 12 डॉक्टर अभी सूरत के लिए आ रहे हैं।
उसमें से 4-5 डॉक्टर हैं जो कैंसर के हैं, अलग अलग दूसरे कैंसर के, और 4-5 डॉक्टर लीवर के हैं, 2-3 डॉक्टर ENT ब्लड कैंसर के, वो सब आते हैं। तो अगर आपको या आपके फैमिली को या आपके ग्रुप में या आपके किसी रिलेटिव को हमारे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर को दिखाना हो तो मैं अपना नंबर बाहर मैंने कार्ड दिया है, वहाँ से आप भी डायरेक्ट बात कर सकते हो और मुझे फ़ोन कर सकते हो। और हमारा OPD सेंटर है, वहाँ पे भी आप आके वहाँ भी मिल सकते हो। और ये एवरी डॉक्टर एवरी मंथ आते हैं तो उनका OPD शेड्यूल भी आपको और अगर पहली आप तारीख को मिल जाएगा। चेंबर के डॉक्टर जो भी है चार्जेस क्या, उनके चार्जेस? सब नंबर एक लिस्ट होगा, तो आपको व्हाट्सएप मंथ के पहले आ जाएगा कि कौन से डेट पे कौन से डॉक्टर आ रहे हैं, तो यू कैन चूज। और चार्जेस जितना सूरत में है, जितने डॉक्टर लेते हैं ना कैंसर वाले, उतने ही हम लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते। हेल्प आपको 100% मिलेगा, सूरत से अच्छा हेल्प मिलेगा। सर लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्कशन एंड ओपिनियन। आप ओपिनियन ले लो, चार्जेस का बात करेंगे। ओपिनियन ले लोगे ना, उसके बाद अपने आप चार्ज में आप एग्री हो जाओगे। એટલે આપણે પ્રયત્ન એવો કરીએ છીએ કે અહીંયાથી માણસે મુંબઈ ના જવું પડે, આવા જવાનો ખર્ચો બચે, સમય બચે, અને એ બધું ગણતરી કરો તો એ ચાર્જીસનું ગણતરી પછી થયા જ કરતી હોય છે। અને જે રીતે વાત કરી તે OPD હોય છે, એમને મળશો ને તો આખો તમને અપોઇન્ટમેન્ટનું આખા મહિનામાં ક્યારે કયા ડૉક્ટર્સ આવે છે તેનું લિસ્ટ એ લોકો અગાઉથી મોકલી દેશે, એટલે તમે ડૉક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ અગાઉથી લઈ શકો। જી સર, આપનો મેડમ પછી આપનો લઈએ, એક મિનિટ સરનો। 7-1.5 साल पहले हो गया है। यस सर। तो बाद में ये सब प्लास्टिक सर्जरी क्या टाउन वगैरह का कुछ हो सकता है? कर सकते हैं सर, 100%। एक्चुअली हर पेशेंट का रिक्वायरमेंट अलग रहता है, बट अगर टर्म सर्जरीज हो चुकी है तो प्लास्टिक सर्जरी सेकेंड स्टेज पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं हुई है तो दोबारा नहीं हो सकती। उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके प्लास्टिक सर्जिकल ऑप्शंस सेकेंड स्टेज में भी है। मैंने जैसे बोला, यूजली 1 साल तक हम वेट करते हैं प्राइमरी सर्जरी होने के बाद। हाँ, जैसे कि कैंसर के वापस आने के चांसेस स्टार्टिंग के 1 साल में थोड़े ज़्यादा हैं, जिस दौरान हमें फॉलोअप रखना है। अभी प्लास्टिक सर्जरी एक पूरा प्रोसेस है, उसमें 2-3 हफ्ता महीना भर जाएगा रिकवर होने में। सो वंस वी आर श्योर कि उनका कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, फिर हम सेकेंडरी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। जी जी मैडम। હલો, હવે એક પ્રશ્ન પૂછવો હતો। जनरली फीमेल्स में गर्भाशय की गांठ ये सब जनरली फीमेल्स में आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो उसका कुछ कैंसर में कन्वर्ट होता है, ऐसा कुछ है या नॉर्मल रहता है वो? अभी गांठ 2 टाइप की होती है। एवरीथिंग इज कॉल्ड अ ट्यूमर। वन इज बिनाइन ट्यूमर, जैसे फाइब्रॉइड्स होते हैं फीमेल्स में, द मोस्ट कॉमन यूट्रस में फाइब्रॉइड, तो उसमें चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू मैलिग्नेंसी आर वेरी लेस, सो दे डोंट कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंसी। दे आर बिनाइन ट्यूमर्स है बट बिनाइन, वो कैंसर नहीं, वो स्प्रेड नहीं होते, वो आपके बॉडी को हार्म नहीं करते। दीज आर लोकलाइज्ड ट्यूमर्स, अबनॉर्मल ग्रोथ है बट दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन मतलब ये कैंसर नहीं है, दीज आर फाइब्रॉइड्स। जय हिंद सर, मेरा नाम मयूर है, बाय प्रोफेशन में फार्मासिस्ट हूँ। मेरा सवाल सर आपसे, देवेंद्र सर से, कि आपने इन्फ्लेमेशन की बात की, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से कैंसर का कोज ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा हम क्या डाइट में ले या फिर कैसा लाइफस्टाइल हम बनाए जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो? और दूसरी ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे मैंने आज टॉबैको छोड़ दिया है तो कितने साल तक मैं उसको 4 साल 5 साल के बाद मैं उसको फ्री हो सकता हूँ कैंसर से? ये 2 सवाल थे मेरे। करेक्ट। तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप टबैको छोड़ते हो तो आपकी रिस्क ईयर बाय ईयर कम होते जाती है, पर इट डजंट बिकम जीरो। टबैको जो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आपके मुंह में हुए हैं, जैसे हम सबको कैंसर सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म और रिपेयर मैकेनिज्म है जो कैंसर सेल बनते हैं, या तो उनको रिपेयर करते हैं या तो उनको मार डालते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, बिकॉज ऑफ टबैको आप ये रिपेयर मैकेनिज्म पे बहुत लोड डाल रहे हो, वापस उनको बोल रहे हो कि हर दिन इंजरी कर रहे हो और हर दिन बोल रहे हो, वो कभी ना कभी बिगड़ते हैं और वो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होते हैं। तो छोड़ने के बाद भी यस, अगर आज आपका चांस 50% है तो 10 साल के बाद वो 10% या 5% ही रह जाता है, जीरो नहीं होता। बट दैट इज द एडवांटेज ऑफ लिविंग कि द चांसेस डिक्रीज ओवर ईयर्स। और एंटी इन्फ्लेमेटरी इज एवरीथिंग दैट इज टोल्ड टू अस बाय आवर ग्रैंडमदर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन is anti-inflammatory. Anything that causes inflammation, tobacco, alcohol, drugs, all these cause inflammation. Have sugar, refined sugar, any refined products, maida, sugar, जैसे any packaged food, these are all pro-inflammatory,
एंटी इन्फ्लेमेटरी इज एनीथिंग इन द नेचुरल फॉर्म. आप नेचुरल फॉर्म में खाना खाओगे, इट इटसेल्फ इज एंटी इन्फ्लेमेटरी. आप बोले इन्फ्लेमेशन के लिए उसमें कोई लैब टेस्ट है कि हम हर साल उसको कराए कि नहीं, इसमें कोई टेस्ट नहीं यूजुअली टेस्ट नहीं होती. यू हैव टू जस्ट मॉनिटर योर इनटेक. सो आप जो मैंने पदार्थ बोले वो कम खाए. देखो छोड़ तो नहीं सकते आप, कभी ना कभी तो एंजॉय करोगे. सो इट्स नॉट दैट यू शुड लीव एवरीथिंग इन लाइफ, बट यस यू शुड हैव इट इन अ लेस प्रोपोर्शन. आप डिक्रीज करो. आप दिन हफ्ते में 2 बार 3 बार खाते हो तो उसको 1 बार करो, या महीने में 1 बार करो. सीआरपी होती है बट इट इज अफेक्टेड बाय वेरी थिंग. आपको अगर थोड़ा सा फीवर आ गया है तो आपकी सीआरपी हाई होगी, तो बाद में कम हो जाती है. सो सीआरपी मॉनिटर करना इज ऑफ नो यूज. हाँ, सीआरपी आती है, प्रोकैल आता है, बहुत से टेस्ट है, बट फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल वी डोंट डू दिस. आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपको एंटीबायोटिक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, तो हम ये सीआरपी और प्रोकैलसिटोनिन करते हैं. फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स वी डोंट डू इट. थैंक यू सो मच. इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी इज हमारे सब में इम्यून सिस्टम रहते हैं, अपने इम्यून सेल्स रहते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, जो कैंसर नॉर्मली भी कैंसर पे अटैक करते हैं. अभी जब कैंसर होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कैंसर सेल्स आर वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट. वो लोग ऐसे चीजें पैदा करती है जो आपके इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करती है. दे डोंट अलाउ योर इम्यून सिस्टम टू. तो ये इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स उसको रीसेट करते हैं and allow your immune system to attack the cancer cells and destroy it. In simple word, that is immunotherapy. Using your own immune system to fight your cancer is what is called immunotherapy. જી, દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમાં સમયની મર્યાદા છે, એમની 12:25ની ટ્રેન છે, બાકી આપણે મુંબઈ મૂકવા જવું પડશે. એટલે આપ દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાયા માટે. બંને સ્પીકરનો, ડૉક્ટર ભરત સર, ડૉક્ટર દેવેન્દ્ર સર, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્પેશિયલ થેન્ક્સ નાણાવટી મેક્સ હોસ્પિટલ. અહીંયા પાછળ એમનો કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ અને જે ફરે સ્લાઇડ ફરે છે. આપ દરેકનો ખૂબ આભાર. કંઈ પણ કામ હોય તો એમના બંને પીઆરઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, બંને ટીમમેટ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપ એમનો સંપર્ક કરી શકો છો. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વતી આપ દરેકનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને નેક્સ્ટ ટુ નેક્સ્ટ સન્ડે આપણે પાછા મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.